Our today's topic is consolidation under Khaljis and Tughlaqs. Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq. Expansion of the empire under Khaljis and Tughlaqs. Yesterday we have read all about these, and today we will start with Khaljis and Tughlaqs. So these rulers, Khaljis and Tughlaq rulers, needed reliable governors and administrators to run the administration. They needed reliable governors and administrators. इन्हें क्या चाहिए थे? Reliable governors and administrators. Reliable governors and administrators. And for this, they preferred their slaves to whom they purchased for military service. They preferred slaves for these jobs. किनको? slaves को. Both Khaljis and Tughlaqs needed reliable, trustworthy governors and administrators. And for this, they preferred. इन्होंने किसको prefer किया? इनको लगा कौन इनके लिए ट्रस्टवर्दी होंगे या इनके लिए रिलायबल होंगे, तो दे प्रेफर्ड स्लेव्स. इन्होंने स्लेव्स को प्रेफर किया टू whom they used for military service. इन्होंने स्लेव्स को प्रेफर किया कि स्लेव्स को बनाते हैं गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है. एंड दे कॉल्ड देम बंदागन इन पर्शियन. बंदागन, बंदागन, लर्न इट. इसे क्या कहा गया? बंदागन. इन पर्शियन लैंग्वेज, जैसे पर्शियन में हिस्ट्री को क्या कहा गया? वारीख. वैसे ही ये जो स्लेव्स थे, स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस, दे वर नोन एज बंदागन इन पर्शियन लैंग्वेज. Tughlaqs and Khaljis needed reliable governors and administrators. For this, they preferred slaves to whom they purchased for military service and called them Bandagan. Bandagan in Persian. Slaves को जो military services के लिए slaves खरीदे जाते थे, they were known as Bandagan in Persian. Persian में उसे Bandagan बोला गया. ठीक है, learn it. Bandagan. And these slaves, these people, ये जो लोग थे, they were trustworthy, they were reliable because they totally dependent upon rulers. They totally dependent upon their masters. ये लोग हमेशा अपने masters पे dependent होते थे. And it became easy for Sultan to rely on these people. As these people, ये जो बंदागन्स थे, they were totally dependent upon their sultans, and it became easy for Sultan to rely upon these people. ठीक है. तुगलक्स एंड खलजिस को कौन चाहिए थे? Reliable governors and administrators to run the administration. For this, they didn't prefer samantas, landlords, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? इंडिपेंडेंट हो जाते थे when their ruler became weak. You know it very well. You have read all these कि समंतास हमेशा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे. Now these rulers, they didn't want to make samantas, landlords as their governors. इन्होंने टोटल सिस्टम ही चेंज कर दिया. देखो, they made slaves. They wanted to made their slaves to whom they purchased for military services as the governors or administrators, known as Bandagan in Persian. These slaves, they were totally dependent upon their masters, so sultans could rely upon them. ना तो वो समंतास पे रिलाई कर सकते थे, ना ही लैंडलॉर्ड्स पे. That's why they made their slaves as their governors. उनको था कि ये लोग हमारे अंडर रहेंगे और हम इन पे रिलाई भी कर सकते हैं. तो बंदागन को क्या बना दिया? गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. नेक्स्ट, एक और चीज भी की इन्होंने. These Khaljis and Tughlaqs, they raised people of humble birth known as clients.
They raise people of humble birth known as clients. Client कौन होता है? Person who is in the protection of other. इन्होंने ऐसे लोगों को बचपन से ही अपने पास, कहते हैं ना पालन पोषण करना किसी का, ऐसे लोगों का पालन पोषण किया और बाद में वो लोग इनके क्या बन गए? क्लाइंट्स. These clients and Bandagan, they were loyal. These clients and governors, they were loyal only to their masters or patrons, not to the hires. Listen again, मैं जैसे बोलूँ, गौरिश ने, ठीक है, पैट्रन गौरिश ने इनको स्लेव्स को, बंदागन को पावर दी, गवर्नर बनाया, ठीक. अब साथ में मैं बोलूँ साव्या ने क्लाइंट्स, इनका ये जो हम्बल बर्थ के लोग थे, इनको इनकी पहले तो इसने केयर की, बाद में इसके क्लाइंट्स बन गए, ठीक. अब ये गवर्नर्स एंड क्लाइंट्स, दे वर लॉयल टुवर्ड्स गौरिश एंड साव्या. अब गौरिश के बाद पावर में आया शुभ. दे वर नॉट, आप कहोगे लॉयल टुवर्ड्स शुभ. अब वो शुभ को लेके लॉयल नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ लॉयल उस पर्सन के लिए थे जिन्होंने उन्हें पावर दी थी, ठीक है. दे वर नॉट लॉयल टू द हायर्स. अगली जो, जैसे रूलर को, जैसे उसका बेटा पावर में आया रूलर के बाद, तो वो लोग उसके बेटे के लिए लॉयल नहीं थे. दे वर लॉयल, दीज गवर्नर्स एंड आप कहोगे क्लाइंट्स, दे वर लॉयल ओनली टू द पैट्रन्स एंड मास्टर्स, but not to their hires. So their hires mean successors, जो बाद में पावर में आया. So there were clashes between these people. तो बाद में इनमें आपस में clashes हुए, ठीक है. जैसे मैं बोलूँ शुभ एंड क्लाइंट्स या गवर्नर्स में clashes हो गए, बिकॉज वो लोग इसको लेके लॉयल नहीं है, ये सक्सेसर है, बाद में आया, तो they were not loyal towards him. They were loyal only to गौरिश एंड साव्या because they hired them, not शुभ. शुभ तो बाद में एज ए सक्सेसर पावर में आया, तो they were not loyal towards शुभ. तो ऐसे they were not loyal. तो there were clashes, इनमें clashes होते थे आपस में, ठीक है. So this is about, again I am going to repeat, तुगलक्स एंड खलजिस ने को क्या चाहिए थे for the administration? They needed reliable governors and administrators. किसको प्रेफर किया? ना तो समंतास को, ना ही लैंडलॉर्ड्स को. किसको प्रेफर किया? दे प्रेफर्ड स्लेव्स to whom they purchased for military service, called them बंदागन. इनको क्या लगता था कि these people would be trustworthy and Sultan could rely upon these people as these people were totally dependent upon Sultan. तो इनको ये था कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं. तो they also raised the people of humble birth and made them clients. These clients and governors, they were loyal towards the patrons and masters, but not to the hires. So there were clashes. अब मिन्हाजे सिराज ने इसको क्रिटिसाइज किया. The then chronicler, he criticized Tughlaqs and Khalji rulers for this. उसने कहा कि क्यों लो बर्थ, because he believed in birthright. You know it very well ना, मैंने पहले बताया था, जेंडर डिस्टिंक्शन एंड बर्थ राइट में बिलीव करते थे लोग. तो मिन्हाजे सिराज वाज अगेंस्ट दिस बिकॉज उसको लगता था कि क्यों लोग आप ये जो स्लेव्स हैं इनको क्यों आप पावर में लेके आ रहे हो. ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ के पावर्स वर गिवन टू द पीपल ऑफ द स्लेव्स. ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द स्लेव्स के स्लेव्स को पावर्स जाएं. तो मिन्हाजे सिराज क्रिटिसाइज दिस सिस्टम, उसने सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि सुल्तान्स को, खलजी एंड तुगलक सुल्तान्स जो हैं उन्हें किसको पावर में नहीं लाना चाहिए? टू द स्लेव्स. स्लेव्स को पावर नहीं देनी चाहिए थी. मिन्हाजे सिराज क्रिटिसाइज्ड दिस सिस्टम, बट सुल्तान्स को लगता था कि स्लेव्स जो हैं वो उनको उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई दे गिव पावर्स टू स्लेव्स. दे मेड देम एज देयर गवर्नर्स, क्लाइंट्स, ठीक है. But Minhaze Siraj criticized this system because he believed in birthright. उसको था कि power should be given only to samantas, landlords, जो हाई जिनके हाई नोबल फैमिली में बर्थ हुए हैं. Give right only to those people, not to slaves. He was not in the favor of, जैसे वुमेन के रूल की फेवर में नहीं था
He was not in the favor of the woman rule. He was not in the favor that rights power should be given to slaves. वो नहीं चाहता था slaves को powers दी जाए, तो he criticized the system. अब next इन्होंने और क्या किया? खलजीज एंड तुगलक्स मिलिट्री कमांडर्स जो थे ना, they appointed military commanders as the governors of the territories. Khaljis and Tughlaqs appointed military commanders as the governors of the territories. अब territory और land was known as इक्ता. land को क्या कहते थे? इक्ता. Listen again. दिल्ली सुल्तान्स, खलजी एंड तुगलक्स की ही बात कर रही हूं मैं. Is it clear? खलजी एंड सुल्तान्स अपॉइंटेड मिलिट्री गवर्नर्स. किसको अपॉइंट किया? मिलिट्री गवर्नर्स. एंड इनको क्या बना दिया? गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज. एंड मेड देम गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज. लैंड अंडर देम वाज नोन एज इक्ता. मींस ये जो गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज थे ना, इनको लैंड दे दी. एंड दैट लैंड वाज नोन एज इक्ता. एंड होल्डर ऑफ द लैंड वाज नोन एज इक्तादार और मुक्ति. एक ही वर्ड है, इक्तादार या मुक्ति पे क्वेश्चन आए, एक ही बात है. इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंड? लिसन अगेन. खलजीज एंड तुगलक्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एंड मेड देम गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज. टेरिटरीज गिवन टू देम वर नोन एज इक्ता. जो लैंड उन्हें मिलती थी उसे क्या कहते थे? इक्ता. इक्ता, IQTA. एंड होल्डर्स ऑफ द लैंड वर नोन एज इक्तादार. क्या कहते थे उन्हें? इक्तादार और मुक्ति. इक्तादार और मुक्ति. नाउ व्हाट वर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज इक्तादार्स? अब ये इक्तादार्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते थे? दीज इक्तादार्स, इनको क्यों ये लैंड दी गई? बिकॉज दे हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज टू द रूलर व्हेनेवर रूलर नीडेड. मींस रूलर्स खुद आर्मी अपने पास नहीं रखते थे. दीज इक्तादार्स इनको लैंड दे देते थे. इनको कहते थे मिलिट्री तुम रखो, अपने आप उसको ट्रेंड करो, पर उसको सैलरी दो खुद ही. और जब रूलर को जरूरत होती, दीज पीपल प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज टू द रूलर. ये लोग रूलर को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. ठीक है. नो ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय मुक्ति. अब ये लोग इक्तादार्स जो होते थे, व्हाट वर द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय देम? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू lead military campaigns. To lead military campaigns. Next, to maintain law and order in their iktas. To lead military campaigns. To maintain law and order in their ikta. Ikta means territory. Territory, land. To maintain law and order in their ikta. To lead military campaigns. मैंने पहले ही बताया कि military campaigns रूलर इन्हें बुलाते थे. Provided military services to the ruler. और उस आर्मी का लीडर कौन होता था? इक्तादार. To lead military campaign. To maintain law and order in their ikta. Next, these iktadars, they were not given salaries by the ruler. Rulers इन्हें salaries नहीं देते थे. These iktadars were given land and they were given right to collect revenue from that land. अब उस लैंड से ये क्या कलेक्ट कर सकते थे? रेवेन्यू. एंड फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे हैड टू पे सैलरीज टू द सोल्जर्स. लिसन अगेन. खलजी एंड तुगलक रूलर्स क्या किया इन्होंने? अपॉइंटेड गवर्नर्स, मिलिट्री गवर्नर्स, एंड मेड देम एज द गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज. Land was known as, territory was known as Ikta. Holder of the Ikta was known as Iktadar or Mukti. Now, what were the functions performed by Iktadars? Iktadar क्या क्या काम करते थे? To lead military campaign. To maintain law and order in their Ikta. Ikta समझ रही हो ना? मैं territory को ही बोल रही हूँ. To maintain law and order in their Ikta. To lead military campaign. These Iktadars or Muktis were not given salaries by the ruler. Ruler इन्हें क्या नहीं देते थे? Salaries. क्यों? इन्हें क्या दी हुई थी रूलर ने? Land. These people were given right
टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द इक्ता। ये लोग इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे गेव सैलरीज टू द सोल्जर्स। तो वही कलेक्शन जो होती थी इनकी सैलरी भी बन जाती थी। इज इट क्लियर? इक्तादार समझ आया कौन होते थे? होल्डर्स ऑफ द लैंड। कौन देते थे लैंड? खलजी एंड तुगलक्स, मिलिट्री गवर्नर्स को। क्यों देते थे लैंड? एक हिसाब से अपना बर्डन कम किया कि ये अपने आप मिलिट्री रखेंगे, अपने आप उनको सैलरी देंगे, इनको एक पीस ऑफ लैंड दे दो, अपने आप रेवेन्यू कलेक्ट करें, एंड देन गिव सैलरीज टू देयर सोल्जर्स एंड प्रोवाइड मिलिट्री सर्विसेज टू द रूलर व्हेनेवर रूलर नीडेड। इज इट क्लियर? इक्तादार्स की समझ आई? हु वर इक्ताज एंड हु वर मुक्तिस? ठीक है। अब ये लोग करप्ट हो जाते थे। मैंने बोला दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड गिवन टू देम, समटाइम्स दे कलेक्टेड मोर रेवेन्यू। करप्ट होते थे कई बार, तो दे कलेक्टेड मोर रेवेन्यू। तो इसमें अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक दे वांटेड टू हैव देयर कंट्रोल ओवर दीज मुफ्तीज। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कंट्रोल रखो, क्योंकि ये लोग लोगों को टॉर्चर करते थे, उनसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लोग अपने सोल्जर्स को सैलरी देते और बाकी अपनी पॉकेट में। तो अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू हैव एन आई, टू कीप एन आई ऑन दीज इक्तादार्स। उन्होंने कहा इन पे नजर रखनी है कि ये लोग करप्ट ना हो जाएं। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या किया? इनको भी प्रॉब्लम्स आई बाद में, मैं बताऊंगी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अकाउंटेंट्स रखे। पहले सुन लो। दे केप्ट अकाउंटेंट्स हु चेक्ड द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू कलेक्टेड बाय इक्तादार्स। अकाउंटेंट्स होते थे जो इनके प्रॉपर रजिस्टर चेक करते थे, हाउ मच रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय इक्तादार्स। ठीक है। पहले तो अकाउंटेंट्स रखे इनके ऊपर नजर रखने के लिए कि कितना रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट करते हैं। These iqtadars were ordered by the Sultan to collect only the revenue prescribed by the state government. इनको कहा गया कि आपने उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करना है जितना कि गवर्नमेंट ने बोला है, आप उससे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स भी इनके लिए फिक्स किए गए। ठीक है। नंबर ऑफ सोल्जर्स, नहीं तो ये कम नंबर सोल्जर्स रख सकते थे। नंबर ऑफ सोल्जर्स वर आल्सो फिक्स्ड बाय द सुल्तान, कितने सोल्जर्स आपने रखने हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर नजर रखी गई। लिसन अगेन। अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कीप एन आई ऑन दीज इक्तादार्स। इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया? अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड हु चेक्ड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय इक्तादार्स। अकाउंटेंट्स को रखा गया who checked the amount of revenue collected by iqtadars. These iqtadars were asked to collect only the taxes which were prescribed by the state. सिर्फ वही टैक्सेस कलेक्ट करने हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, एक्स्ट्रा कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना। एंड these iqtadars had to keep required number of soldiers, had to keep required number of soldiers. अब मेरी बात समझ आई? These rulers appointed military governors, gave them territories known as Iqta. Holder of territories were known as Iqtadars or Muftis. क्या functions थे? To lead the military campaign, to maintain law and order in their Iqta. No salaries were given to them by rulers. They had given right to collect revenue from the Iqta. Iqta land को बोला गया, and from that revenue they could pay their soldiers. But sometimes these Iqtadars became corrupt. So Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq wanted to keep an eye on these muftis. इन्होंने क्या किए? Appointed, किसको appoint किया? Accountants. And these accountants checked the revenue collected by these people. ठीक है। एक तो इनका रेवेन्यू चेक करते थे कि जितना बोला है, एंड आल्सो दीज इक्तादार्स वर आल्सो आस्क्ड टू कलेक्ट ओनली द रेवेन्यू व्हिच वाज आस्क्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, व्हिच वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू कलेक्ट एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। नेक्स्ट, दीज इक्तादार्स हैड टू कीप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। इनको जितने सोल्जर्स गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर थे, दे हैड टू कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स।
Now is it clear? Who were Iqtadars? What were the duties performed by Iqtadars? ठीक है. Land holders under the period of Delhi Sultans, under the period of Tughlaqs and Khaljis were known as Iqtadars. Is it clear? Khaljis and Tughlaq का period हम कर रहे हैं. एंड इनकी ड्यूटीज मैंने बताई है. हाउ रूलर्स कीप एन आई ऑन दीज पीपल, ये भी मैंने बता दिया. अब क्या ये मुक्तिस खुश थे? नहीं, बिकॉज देयर पोस्ट वाज नॉट फिक्स्ड. टेम्परेरी जॉब थी इनकी, टेम्परेरी थे, इनको शिफ्ट कर देते थे. दीज रूलर्स शिफ्टेड देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब दिल करता था इनको शिफ्ट, इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे. ठीक है. टेम्परेरी नहीं, इनकी पोस्ट जो थी दैट वाज टेम्परेरी, टेम्परेरी बेसिस पे इन्हें रखा हुआ था. देयर अपॉइंटमेंट वाज टेम्परेरी, परमानेंट नहीं थी. इनकी अपॉइंटमेंट वाज नॉट परमानेंट, देयर अपॉइंटमेंट वाज टेम्परेरी. दे वर शिफ्टेड बाय द रूलर्स व्हेनेवर रूलर वांटेड. जब रूलर का दिल करता इन्हें शिफ्ट कर देते थे. देयर पोस्ट वाज नॉट परमानेंट, देयर अपॉइंटमेंट वाज टेम्परेरी. टेम्परेरी बेसिस पे इनको रखते थे कि जब करप्ट हुए निकाल दो. सो दीज मुक्तिस, क्या ये एक आपकी बैक पे भी क्वेश्चन है, ये जो मुक्तिस हैं क्या ये लोग चाहते थे ऐसी वाली जॉब करना? टॉपिक इज मुक्तिस have wanted to defy the orders of sultan. मुक्तिस सुल्तान का ऑर्डर डिनाई करना चाहते थे because restrictions imposed on them were very rigorous. बहुत स्ट्रिक्ट इनके ऊपर restrictions लगी हुई थी. Sultans imposed strict restrictions on these people. इनके ऊपर strict restrictions लगाई हुई थी, बैन लगा हुए थे इनके ऊपर नजर रखी हुई थी. Their appointment was not fixed, their appointment was temporary. So these people always wanted to defy the orders of their sultans because restrictions imposed on them were rigorous, were very strict. बहुत strict इनके ऊपर restrictions लगी हुई थी. Is it clear? इक्तादार्स, मुक्ति clear? कैसे इन पे नजर रखी? क्या ये लोग, क्या मुक्तिज और इक्तादार्स have wanted to defy the orders of sultan? Yes, because restrictions imposed on them were very rigorous. Restrictions imposed on them were very strict. इनके ऊपर बहुत strict restrictions लगी हुई थी. Restrictions का meaning पता है ना? बैन. इनके ऊपर बहुत सी restrictions लगाई हुई थी रूलर्स ने. ये अपनी मनमर्जी इक्तादार्स नहीं कर सकते थे. Is it clear? इनकी अपॉइंटमेंट ही टेम्परेरी बेसिस पे होती थी. इनके ऊपर अकाउंटेंट थे, इनका रिकॉर्ड चेक होता था. ठीक है. दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एक्स्ट्रा रेवेन्यू. दे हैड टू कलेक्ट द रेवेन्यू दैट वाज ओनली प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? दे हैड टू कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर्स आल्सो. सो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन दीज पीपल वर वेरी रिगरस. दे वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. तो नेक्स्ट, अब इसके बाद आप क्या आ जाते हैं? नेक्स्ट इज, हमने किया मोहम्मद बिन तुगलक तक. नो नेक्स्ट टू डायनेस्टीज, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. अब एक मिनट, दीज रूलर्स, ये जो रूलर्स थे ना दिल्ली सुल्तान्स, थे कलेक्टेड स्टेप्स टेकन बाय, एक ये भी टॉपिक कर लो, अलाउद्दीन रेवेन्यू ने, अलाउद्दीन खलजी ने रेवेन्यू को कैसे अपने अंडर किया. हाउ ही ब्रोट रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल. सबसे पहले तो उसने जो लोकल चीफ्स थे ना, है ना, उनकी पावर्स छीन ली. नेक्स्ट, टैक्सेस. सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसमें उसने 3 टाइप के टैक्सेस फिक्स कर दिए. ए फिक्स्ड 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. तो आपको ये लर्न करने हैं 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब क्या क्या थे? फर्स्ट इज खर्च, 50% ऑफ द प्रोड्यूस. ऑन कल्टीवेशन होता था ये खर्च ऑन कल्टीवेशन. ये किस पे टैक्स होता था? ऑन कल्टीवेशन. एंड 50% ऑफ द प्रोड्यूस. It was 50% of the produce. 3 types of taxes were collected by the ruler.
फर्स्ट खरज, खरज क्या था? 50% ऑफ द प्रोड्यूस, कल्टीवेशन। सेकेंड मैंने बोला 3 काइंड्स ऑफ टैक्सेस, एक तो था टैक्सेस ऑन कल्टीवेशन, देन कैटल, ऑन कैटल, एंड देन ऑन हाउसेस। ऑन कल्टीवेशन, फिर ऑन कैटल, फिर ऑन हाउसेस. So learn these 3 types of taxes collected by Delhi Sultans. First kharaj on cultivation, then on cattle, then on houses. So these were the 3 kinds of taxes. Delhi Sultans forced samantas and landlords, samantas and landlords to come under their control. Delhi Sultans brought samantas and landlords under their control. These chiefs were now not allowed to collect the revenue. Delhi Sultans collected 3 kinds of taxes: on cultivation, on cattle, on houses. खरज 50% ऑफ द प्रोड्यूस, जो कल्टीवेशन पे होता था उसे कहते थे खरज. 50% ऑफ द प्रोड्यूस. 3 काइंड्स ऑफ टैक्सेस यू हैव टू लर्न. इज इट क्लियर? एंड कल मैंने आपको बताया था इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली सुल्तान्स टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ बंगाल. बंगाल और सिंध पे अपना होल्ड नहीं कर पाए थे. डिफिकल्ट फॉर दिल्ली सुल्तान्स टू कंट्रोल द एरिया ऑफ दिल्ली. दिल्ली से बंगाल और सिंध पर अपना होल्ड नहीं कर पाए. नेक्स्ट अब आगे मंगोल्स के इन्वेशंस. मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, पहले तो मंगोल्स जो थे ना, गेंगिस खान, लीडर ऑफ मंगोल गेंगिस खान, हु वाज गेंगिस खान, मंगोल लीडर. बारबेरियस ट्राइबल पीपल थे ये, वेरी क्रूअल ट्राइबल पीपल. मार काट में बिलीव करते थे, ब्लडशेड में बिलीव करते थे. मंगोल्स, barbarous tribal people, very cruel tribal people. Leader was Genghis Khan. Learn it. And they attacked during the period of Delhi Sultans. They attacked 2 times during the period of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad bin Tughlaq. They attacked 2 times during the period of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad bin Tughlaq. अब आगे कौन? मंगोल्स, ट्राइबल पीपल. फिर आपने बताना है क्रूअल होते थे ये लोग. Attacked 2 times during the period of, leader was Genghis Khan. Attacked 2 times during the period of, किसके पीरियड में 2 बार अटैक किया? अलाउद्दीन खलजी. And in the early years of Muhammad bin Tughlaq, they also attacked. And for this, अब क्योंकि मंगोल्स के अटैक हो रहे थे, दिल्ली सुल्तान्स had to keep standing army. Standing army होता है always on toes, हर time ready army, हर time ready army on toes. For this, Delhi Sultans Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq had to keep standing army. तो टाइम इज, अभी आज नहीं हम करेंगे. ओनली फ्यू टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन आर लेफ्ट. अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कंपेयर करना है. एंड देन सैयद्स एंड लोदीज लास्ट हु केम टू पावर. ओके, आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक सैयद्स केम, देन आफ्टर सैयद्स लोदीज केम. अब लोदीज का एंड होना है तो मुगल डायनेस्टी पावर में आनी है. तो लेसन कंप्लीट हो जाना ना लोदीज पे. इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी.